this video we are starting with a new chapter, chapter number 7, coordinate geometry. ठीक है बच्चों, चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों, यहाँ पे 10th में इंट्रोडक्शन है, बट इन हायर स्टैंडर्ड देयर इज एन एंटायर ब्रांच ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर मेंस एंड जेईई मेंस, आईआईटी के लिए बहुत यूजफुल होता है. ठीक है बच्चों, सो प्लीज बी अटेंटिव और इसके फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्लास 9 तक ये देखा है कि हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे प्लॉट करते हैं, दैट इज पॉइंट x एंड पॉइंट y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. और हमने किसी भी लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखा है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जैसे कोई भी लाइन है x + y = 7, तो हम x की वैल्यू लेके y की वैल्यू लेके देन वी यूज्ड टू प्लॉट दैट लाइन. ऑल दिस कांसेप्ट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. बट कमिंग टू क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे बच्चों जहां तक कि एनसीईआरटी का पुराने साल का बुक था, वहां में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तीन फार्मूला में पढ़ने होते थे. बट दिस ईयर इन 2023 एज द सिलेबस हैज रिड्यूस्ड, तो अभी हमें सिर्फ दो ही फार्मूला पढ़ने हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला. सो स्टार्टिंग विद डिस्टेंस फार्मूला, distance formula, and the formula is the distance between the 2 points. Suppose let me just draw first quadrant here. This is x axis and this is y axis. Now, if you take any point here, let this point be x1, y1. Okay, x1, y1, and let's take any other point over here, x2, y2. Now, the distance between these 2 points can be calculated by using distance formula. Let the name of this point be A and let this be B. So distance AB will be given by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. The distance between the 2 points on the coordinate plane will be given by this formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, the whole under root. ठीक है बच्चों. Now if you apply this formula for here coordinate, here you can see here x is 3 and y is 2. Okay, so 3, 2 is the point here, and for point B if you see x is 6 and y2 is 7, right? Now let's apply the formula under root x2 minus x1. So बच्चों x2 यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1. What is y2 here? 7 minus 2 whole square. So that will give you 6 minus 3 is 3 square plus 7 minus 2 is 5 square. 6 square is 9. Sorry, 3 square is 9 plus 5 square is 25. 25 plus 9 14 34. ठीक है बच्चों, so यहाँ पे under root 34 is your answer. So under root 34 is the distance between these 2 points. So this is how we are using the distance formula. बहुत सिंपल सा है, आप लोग note it down this in your notebook. Distance between the 2 points is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, next one is section formula. So let's see section formula.
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर हैविंग 2 पॉइंट, you are having 2 point A and B, you are having a line AB, the coordinate of AB are, suppose the coordinate of A is 3, 2 and the coordinate of B are 5, -2, right? These are the coordinate of A and B. और यहाँ पे मैं एक ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ, suppose a point C divides the line AB, suppose a point C divides the line AB in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1, then find the coordinate of point C. अगर ऐसा केस है then we are using the section formula. ठीक है बच्चों, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला इज, in your textbook it is given m1 x1 plus m2 m1 x1 mx2 plus just a minute, m1 x2 plus mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n. This formula which I have written here, it is different from your textbook. In your textbook they have taken m1 and m2. See, they have taken m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, ठीक है, और m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. देखो बच्चों, this formula is given in your textbook, this formula, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है 3:1 में जो डिवाइड किया है, तो ये जो 3:1 में डिवाइड किया है, सो दिस फर्स्ट वन इज योर m1 एंड दिस इज योर m2. लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इसमें m1 m2 में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, सो इसीलिए यू डोंट, आई विल सजेस्ट डोंट ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला व्हाट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. एट द प्लेस ऑफ दैट आप इसे याद रखो, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, और यहाँ पे जो रेशियो है, जो रेशियो हमने m1 m2 लिया था उसे आप mn लो, टेक इट इन द रेशियो m रेशियो n. तो ये क्या होगा कि सिंपल हो जाएगा आपको लर्न करना, ठीक है, मैंने भी ऐसे याद रखा है, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, राइट. नाउ सो देखो बच्चों, अब ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता कहां पर है? जैसा मैंने बताया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो एंड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट के, और जो पॉइंट सी है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है रेशियो 3:1 में. ओके, द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय पॉइंट C इन द रेशियो 3:1. हमें बताना है पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट ये आएंगे, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट ये आएंगे. अब देखो यहाँ पे x2 और x1 क्या है, सो the line segment AB is divided by point C, so this will be your x1 y1, this will be your x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और आपका m होता है फर्स्ट वन पहला रेशियो और n होता है सेकंड रेशियो. जस्ट कीप द वैल्यूज एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C. so mx2, m is 3, what is x2? x2 is 5 प्लस n is 1, n 1 है, और x1 is 3 by m plus n, that is 3 plus 1, comma m y2, what is m? m is 3, what is y2? y2 is -2 plus what is n? n is 1, what is y1? y1 is 2 by m plus n, that is 3 plus 1. Okay, so 3 5 are 15 plus 3 upon 4, comma -6 plus 2 upon 4. Okay, now 15 plus 3 is 18 upon 4 and -6 plus 2, that is -4 upon 4. So here you will get 9 upon 2 and here you will get -1. ठीक है बच्चों, so these are the coordinate of point C. ओके, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, राइट.
So you all can take a note of that. So in our syllabus of class 10 this year यही दो formulas हैं, ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला नहीं है. बट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो उसे. ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, बोर्ड में भी नहीं आने वाला है, बट जस्ट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. So area of triangle, suppose you are given with a triangle in the coordinate plane. आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई ट्रायंगल दिया है, ए बी सी उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है. ए है आपका 3,2, दिस इज -5,4 और ये है 3,-2, ठीक है बच्चों. If these three are the coordinate of any triangle in coordinate plane, तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? So that is the formula for area of triangle. Let this coordinate be x1 y1, this be x2 y2, and this be x3 y3. Now you can apply the formula for area of triangle. Area of triangle will be given by one by two. Area of triangle will be given by 1 by 2 into modulus. 1 by 2 into modulus x1 into bracket y2 minus y3 plus x2 into bracket y3 minus y1 plus x3 into bracket y1 minus y2. देखो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको मॉड्यूलस लगाना है यहाँ पे. दिस इज मॉड्यूलस. मॉड्यूलस के अंदर आपको सबसे पहला x का कोऑर्डिनेट लेना है x1. अब आपने यहाँ पर 1 लिया, आपको हमेशा पैटर्न याद रखना है 1 2 3. फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे y 2 और 3 आएगा. नेक्स्ट आपने x 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद 3 और फिर से 1. नेक्स्ट आपने यहाँ पर x 3 स्टार्ट किया, 3 के बाद 1 और फिर 2, ठीक है बच्चों. और यहाँ पे मॉड्यूलस की साइन इसलिए है बिकॉज आपका ये आप जो भी कैलकुलेट करोगे इसका आंसर जो भी आए आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है. एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लगाया है ताकि उसके अंदर अगर आपको माइनस की साइन भी आती है सो इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन. In the next video we will solve the first exercise. Thank you for watching.